Yes, good morning, students. In the last lecture of operating system, we have covered the basic what is operating system. Okay, what is operating system that we have covered, the functions of operating system and basic of operating system. Okay, basic history of operating system that we have learned in the last lecture. Okay, what is operating system? Who will tell me what is operating system? Is a system software. Yes, it is a system software, correct. And interface. Okay, it is a system software. Second point you can remember, it is a system software. Okay, what is software? Software is a set of instructions. Okay, what is software? Software is a set of instructions. Okay, so there are two types of software: system software and application software. System software are the software which are used to start our system. Okay, so operating system is used to start our system. As I told you in the last lecture, without operating system, our desktop, our laptop, even our mobiles cannot start. Okay, why? Because everything, whatever will be is happening in our system due to the operating system. So operating system is a system software. The second type of software is application software. Okay, what is application software? Software which are used for a particular use or for particular intention. You can say it is made. For example, calculator. Okay, the calculator used to calculate, do the calculations. Okay, and then Microsoft Word. In Microsoft Word, we can make our application. We can make our notes. Okay, in a PowerPoint presentation. In that PowerPoint presentation, we can make our PPTs. Okay, you can give the presentation. This is a PowerPoint presentation. ठीक है, ये PPT है जो आपको दिख रहा है, जो जिसमें मैंने बनाया ये, that is a PPT, PowerPoint presentation है. Excel. Okay, so all are the application type software. कौन से type के software है? Application type के software. तो operating system जो है, that is a system software. Okay, operating system is a system software that act as an interface between the user and computer hardware, and it controls the execution of all kind of programs. Okay, so this definition, okay, this definition should be remembered to all the students. Okay, why? Because our subject is operating system. तो हमको पता होना चाहिए कि what is operating system, what is the use of operating system. Clear? Okay. So some basic example of operating systems are Linux operating system, Windows operating system, VMS operating system, OS 400 operating system, X operating system, Z OS. Okay, all are the different types of operating system that we can use. Okay, now currently in our desktop or laptops, we are using the Windows operating system. There are different versions of Windows operating systems are available. Okay, in your mobile phone, there is a Android operating system. The operating system which you are using in your Android phone, that is a Linux operating system. Then how the operating system is installed. Okay, and where it is installed. The operating system is installed in the hard disk. ठीक है, कहाँ पे इंस्टॉल होता है वो? इन द हार्ड डिस्क में इंस्टॉल फिट किया हुआ रहता है बाय द मैन्युफैक्चरर. ओके, व्हेन यू विल पावर ऑन योर सिस्टम. ठीक है, आप जब पावर ऑन करोगे, आपका स्विच ऑन करोगे लैपटॉप का या तो कंप्यूटर डेस्कटॉप का, तो एट दैट टाइम व्हाट विल बी हैपन, आपका जो डेस्कटॉप सॉरी हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्टोर किया हुआ है, दैट विल बी लोड इनटू द रीड ओनली मेमोरी. मेमोरी में लोड होगा. ठीक है, व्हाट इज मेमोरी आई विल टेल यू. Okay, so this is about operating system and some examples of the operating system that you have to remember. Okay, history of operating systems. Okay, this is just read. Okay, no need to explain in this history of operating system. Okay, these are the functions of operating system. Each and every function have we have for this every function has we have a different chapter. Okay, for memory management there is separate chapter. Process management is one chapter. File management is one chapter. Means we have to learn in detail about all these functions of the operating system. Okay, so the first function is memory management functions. Okay, in the operating system, the system perform the following functions. Which are the functions? These all are the functions. The first is process management.
Okay, process management. The process management helps operating system to create and delete the operating system. What is the meaning of management? The operating system will going to handle all the process. What's the means of process? Process मतलब क्या? When we are click on any folder, so opening is a process. Okay. When I am opening the Zoom is opening opening process. Okay, when I will close, okay, so close is a process. So for each and every task, the process will be generated. तो वो प्रोसेस जनरेट करना, उसको हैंडल करना, उसको डिलीट करना, ऑल आर डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. और जो हम प्रोसेस को हैंडलिंग करते हैं, वी आर डूइंग द टास्क विद द प्रोसेस, इट्स कॉल्ड द प्रोसेस मैनेजमेंट. तो प्रोसेस मैनेजमेंट इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, द सेकंड इज मेमोरी मैनेजमेंट. The second is memory management. All are the functions. जो functions मैंने आपको figures में दिखाए वही function I am explaining. ठीक है. The second is memory management function. So what primary memory, secondary memory. ठीक है. तो all the memory handling जो है, ठीक है, primary memory मतलब क्या? जो CPU जो currently execute कर रहा है जो भी data that will be stored in the primary memory. वो कहाँ पे store होगा? Primary memory में store होगा. And hard disk है, pen drive है, all are the secondary memory. We have next topic जो है that is memory related है. ठीक है, तो उसमें मैं आपको explain करती हूँ what is memory. तो memory related जो भी functions है, ठीक है, it is also handled by the operating system. उसको क्या बोलते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट. ओके, मेमोरी मैनेजमेंट मॉडल परफॉर्म द टास्क ऑफ अलोकेशन एंड डीअलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम इन नीड ऑफ दिस रिसोर्सेस. ओके, मेमोरी अलोकेट करना, मेमोरी डीअलोकेट करना. ओके, व्हाट इज द मींस ऑफ अलोकेट करना मतलब क्या? हम there are two types of memory, student. Basically there are two types of memory. Okay, the first is primary memory and second is secondary memory. तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होगा? जो भी हम करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, जो भी डेटा करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है वो कहाँ पे होगा? प्राइमरी मेमोरी में होगा. ओके, एंड जो डेटा हमने सेव करके रखा है हार्ड डिस्क में वगैरह, दैट विल बी स्टोर्ड इन द सेकेंडरी डिवाइस, हार्ड डिस्क. ओके, हार्ड डिस्क में सी ड्राइव, डी ड्राइव में कोई भी फोल्डर आप बना के रख रहे हो, it will be stored in the secondary device. तो जो भी सपोज कोई मेरा फाइल वर्ड फाइल सेकेंडरी डिवाइस में स्टोर है, ओके, एंड आई वांट टू ओपन इट, एंड व्हेन आई एम ओपनिंग दैट डॉक्यूमेंट, तो वो डॉक्यूमेंट कहाँ पे चला जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी में से प्राइमरी मेमोरी में. व्हाई? बिकॉज सीपीयू जो है एग्जीक्यूशन करेगा वो कहाँ से करेगा? प्राइमरी मेमोरी में से. व्हाट इज द मीन ऑफ एग्जीक्यूशन? अभी जो पीपीटी ओपन है एंड जूम अभी वर्किंग में है, तो वो कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? सीपीयू. All the executions of the programs in our system done by the CPU. ओके, उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? सीपीयू कर रहा है. ठीक है, तो ये जो मेरा पीपीटी है, दिस फाइल इज स्टोर्ड इन माय डी ड्राइव में मैंने स्टोर किया हुआ है, बट जब मैं उसको ओपन कर रही हूँ, ओके, उसको उस पर मैं काम कर रही हूँ, तो एट दैट टाइम वो डी ड्राइव में से कहाँ पे स्विच हो जाएगा? मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में. ओके, व्हाट इज मेमोरी वो भी हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, ईच एंड एवरी जो टॉपिक है ना, ये हमको डिटेल्स में पढ़ना है. एवरी फंक्शन जो है दैट वी विल लर्न इन डिटेल. हर एक फंक्शन के लिए देयर इज वन सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है हमारे सिलेबस में. ओके, तो अभी जस्ट ऊपर ऊपर से याद रखो व्हाट इज प्रोसेस मैनेजमेंट, व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट. ओके, फाइल मैनेजमेंट. ओके, फाइल whichever file we have created, word file है, powerpoint है, pdf है, image file है, जो भी files हम लोग create करें, okay, all the files related activities जो है, file को delete करना, create करना, share करना, open करना, it is also done by the operating system. So file management is the function of operating system. Clear, students? Are you understand? Yes or no? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Okay. Okay. Yes, students. If you have any doubt, so you can raise your hand, or in between you can tell me, ma'am, nahi samajh mein aa raha hai. Explain again this point. Okay, you can tell. Otherwise, you can type in chat box also. Otherwise, मुझे लगेगा नहीं तो फिर आपको समझ में आ ही रहा है. ठीक है. If you have any doubt, you can type in chat box, or you can tell me. Yes. The next function is device management. Okay, device management. Whatever devices we are using, okay, जो devices हाँ हम लोगों ने connect किया है, which are the devices? Suppose mouse है, keyboards है,
ठीक है, मॉनिटर्स है, देन लैन केबल वी आर कनेक्टिंग, देन प्रिंटर वी आर कनेक्टिंग, ठीक है। तो जो हम उसको कनेक्ट करें, ठीक है, तो उसमें से हम इनपुट सिस्टम में डाल रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो वो सब हैंडल करना, ठीक है, उसको सिंक्रोनाइज करना कि जो इनपुट दे रहे उसके रिलेटेड आउटपुट डिस्प्ले होना चाहिए, इट इज ऑल्सो डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस मैनेजमेंट जो है वो इट इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। वो भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। देन input output system management, input, I for input, O for output. Input output system management, one of the main objectives of any operating system is to hide the peculiarities of that hardware device from the users, ठीक है। when you are entering something through the keyboard, ठीक है, अब कीबोर्ड से कुछ एंटर करो तो सिस्टम उसको कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है, उसके रिलेटेड आपने जो भी इनपुट दिया है उसका आउटपुट डिस्प्ले करवाना, ठीक है, इट इज हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। आईओ सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है it also handle the IO input and output device. Okay, how all these things will be happen, how that we will learn in the respective chapters. Process क्या है, process कैसे create होता है, ठीक है, how the process will execute, all we will learn, ठीक है, in the chapter 2. chapter 2 में हमको process management पढ़ना है। then chapter 3 में we will learn the memory management and file management. Okay, in chapter 4 there is a device management एंड आईओ सिस्टम मैनेजमेंट, ठीक है। तो ऐसे हर एक चैप्टर्स में हमको ये फंक्शंस दिया हुआ है डिटेल्स में, तो डोंट वरी, वी विल लर्न इन डिटेल। ओके, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। ओके, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, और सेकेंडरी स्टोरेज मतलब क्या, योर हार्ड डिस्क जो है दैट इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। प्राइमरी रैम एंड रोम बोथ आर द प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी क्या है आपका, हार्ड डिस्क जो है, पेन ड्राइव जो है, जिसमें हम लोग वी कैन स्टोर द डेटा परमानेंटली, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, तो सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट जो भी डेटा, जो भी इश्यूज है कि डेटा स्टोर करना, उसको व्हेन वी आर एग्जीक्यूटिंग दैट डेटा, तो वो डेटा को मेमोरी में स्विच करना, स्पेस प्रोवाइड करना, ठीक है, ऑल इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये सब कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जॉब अकाउंटिंग, okay, keep track of time and resources used by various jobs and users. Okay, आप देखो कोई फोल्डर्स वगैरह क्रिएट किया हुआ रहता है, ठीक है, यू कैन सी कि लास्ट उसको कभी अपडेट किया, ठीक है, क्या टाइम है, डेट एंड टाइम है, ठीक है। आपने जब उसको ओपन किया होगा, जब उसको मॉडिफाई किया होगा, एडिट किया होगा, तो दैट टाइम ऑल्सो आर सेव्ड। ओके, तो ये भी डेट एंड टाइम है, वो भी कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, वो भी कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इन शॉर्ट एवरीथिंग जो भी हमारे सिस्टम में परफॉर्म कर रहा है वो हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ड्यू टू ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया, अगर हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कंप्यूटर में, तो इवन हम उसको स्टार्ट भी नहीं कर सकते। ओके, then communication management, coordination and assignments of compilers, interpreters and others, another software resources of various users of the computer system. Okay, आपके पास लैपटॉप है, you can download the C compiler, C की जो प्रोग्राम्स है वो करने के लिए you have to download C compiler, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। सिस्टम तो एक ही है, सपोज आपको कोई .NET का प्रोग्राम करना है तो you can download ASP.NET and you can start your working. Okay, if कोई भी सॉफ्टवेयर you can easily install in your system and you can working with that software. Okay, why? Because of operating system है तो आपका एक ही लैपटॉप, बट उसमें आप डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर यू कैन डाउनलोड, different types of compilers you can download and you can run the programs easily. Okay, so it is allowing by the operating system. So all these elements are the functions of operating system, so you have to remember the functions of operating systems. Okay, memory management, processor management, file management, device management, ठीक है, security command, yes, ये remaining है ना, ये बाकी है, okay, sorry, security. Okay, security models protect the data and information of a computer system against malware threats and authorized access. Okay, you can provide the username and password, you can create the users in your laptop, in your computer. Okay, आप उसको password protected कर सकते हो. Okay, this is also done by the operating system. Command interpretations. Okay, this model is interpreting commands given by the end acting system resources to process that command. For example,
कोई कमांड दे रहे, ठीक है, इन MS Word, ठीक है, दिस इज अवर सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, दिस इज वन एप्लीकेशन MS Word, तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स है, ठीक है, तो द कमांड्स आर अंडरस्टैंडिंग बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डिजाइन करना है या तो कुछ इंसर्ट करना है, होम पे जाके कुछ सेव करना है, वट एवर आई वांट टू डू, so the system can understand these commands of the software, okay, why? Because of operating system. Command interpretations, उसको क्या बोलते हैं, command interpretations, okay. Networking, okay, if you want to create your connect your system in the network, okay, हमारा जो lab है, in our computer lab, every computer is connected into the network, कहाँ से connected है, network में connected है, ठीक है, तो यू कैन कनेक्ट थ्रू द नेटवर्क, ओके, अगर आपके कंप्यूटर जो नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो ऑल द कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, मतलब ऑल द कंप्यूटर कैन ट्रांसफर द फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर व्हेन, जब वो नेटवर्क में कनेक्टेड है तो, ठीक है, तो इट इज आल्सो हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, तो ऑल आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यस, जॉब अकाउंटिंग बताया, कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट, ओके, that also I told you, so total 11 functions were that you have to remember, okay, process management, memory management, file management, device management, IO system management, secondary storage management, security, command interpretation, networking, job accounting, and communication management, all are the functions of operating systems, okay, because in this definition we have seen that uh, controls and execution of all kinds of programs. So which kinds of program? All these kinds of program. Okay, operating system handles all these things, all these functions, memory management, process. You can remember to figure के through आप याद रख सकते हो, और you can remember through these steps. Okay, process management, memory management, file management, device management, IO system management, secondary storage management, security, command interpretation, networking. See students, all these words are new for you. Okay, so don't worry, आपको एक उसमें याद नहीं रहेगा, you have to read it. ठीक है, आपको उसको क्या करना है, रीड करना पड़ेगा, you have to write. फिर जब उसको रीड करोगे, राइट करोगे, then you can remember all these things. Okay, slowly you will be familiar with all these terms, because now अभी जो भी words हम लोग पढ़ेंगे, जो भी terms हम लोग देखेंगे, all are software related होगा, ठीक है, तो मे भी कुछ students ने first time सारे words सुने हैं, ठीक है, तो don't worry, इतना टेंशन मत लो कि ये क्या है, ठीक है, we will do, हम लोग आराम से करेंगे सब लोग, don't worry, okay, but just अभी try to understand concept, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी कंसेप्ट है वो समझने का ट्राई करो कि ये क्या है, देन एक बार समझ लिया तो यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने उसमें लिख सकते हो, ठीक है, एंड इट विल बी गुड इफ यू विल राइट साइमल्टेनियसली, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको जो भी समझ में आ रहा है तो यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक, ओके, अभी ऐसे नहीं है कि मैं बोलूंगी आप लोग लिखोगे ना, अभी क्या करना है, आई विल एक्सप्लेन यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स इन योर नोटबुक, आपको जो भी समझ में आ रहा है अपने खुद के वर्ड्स में याद उसको लिखना है, तो इजीली याद रहेगा, ठीक है, ओके, चलो, so in this topic anyone has any doubt, what is operating system and functions of operating system? Yes, anyone has any doubt? Anyone has any doubt, students? Okay, now tell me which are the functions of operating system. चलो, कौन बताएगा मुझे, जितने फंक्शंस याद है, ऐसा नहीं कि 11 की 11 ही मुझे चाहिए, जितना आपको याद है, कितना फंक्शन याद हुआ, which are the functions of operating system? Yes, रीता, मीनिंग ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, मतलब सिंक्रोनाइजेशन में काम होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इनपुट, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट शुड बी डन इन सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, जब व्हेन वी आर कोई फोल्डर पे प्रेस करें, ओके, जैसे हमने फोल्डर पे प्रेस किया, माउस से क्लिक, वी आर क्लिकिंग विद द माउस, ठीक है, इट विल बी ओपन, दैट फोल्डर शुड बी ओपन, ठीक है, वही फोल्डर ओपन होना चाहिए, ठीक है, ब्राउजर ओपन किया तो ब्राउजर शुड बी ओपन, तो दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन,
ओके, सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। जो हमने कमांड दिया है, जो हमने इनपुट दिया है, अकॉर्डिंग टू दैट इनपुट आउटपुट मस्ट बी ओपन। तो ऐसे नहीं है कि हमने ये फोल्डर बटन पे क्लिक किया तो और कुछ ओपन हो रहा है। ठीक है, हमने गूगल क्रोम पे क्लिक किया, ब्राउजर पे क्लिक किया तो ब्राउजर मस्ट बी ओपन। जो इनपुट हम लोग दे रहे दैट उसका रिलेटेड रिस्पेक्टिव आउटपुट मस्ट बी रिटन सिंक्रोनाइज्ड वे में होना चाहिए। ठीक है, हम लोग कीबोर्ड में से यहाँ पे कुछ मैं प्रेस कर रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं टाइप कर रही हूँ ओपीटी, तो जो मैं कीबोर्ड में से कमांड टाइप कर रही हूँ, ठीक है, जो भी बटन प्रेस कर रही हूँ मैं, जो भी स्पेलिंग्स, जो भी कमांड्स मैं दे रही हूँ, ठीक है, इट शुड बी रिटर्न। ओके, उस सेम होना चाहिए, दैट इज सिंक्रोनाइज्ड। जो इनपुट दे रही हूँ वही आउटपुट डिस्प्ले होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। ओके, ओके मैम। यस यस। अफजल, ये जो चैप्टर्स जो सारे फंक्शंस है, ओके, वी विल लर्न इन डिटेल। बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड which are the output device, which are the input devices, what is input, what is output, okay, and then we will learn the IO management। okay, जो IO management, जो ये जो सारे चैप्टर्स जो है, सॉरी, जो फंक्शंस है, हर एक फंक्शन के लिए वी हैव दी वन चैप्टर। ठीक है, तो अभी आपको क्या याद रखना है, बेसिक व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, which are the operating systems है, types of operating systems, and the functions आपको अभी याद रखना है। just remember the name of that functions। okay, हर एक functions हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्लियर? ये मैं अभी डायरेक्टली आपको बताऊंगी तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड। हमको बेसिक हर एक चैप्टर में हम लोग आईओ सिस्टम है तो व्हाट इज इनपुट डिवाइस, व्हाट इज आउटपुट डिवाइसेस, ओके, देन उसका हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। सेम व्हाट इज फाइल, ओके, टाइप्स ऑफ फाइल्स, फाइल्स ऑपरेशंस, फाइल एट्रीब्यूट्स, देन उसको कैसे हैंडल करना है, दैट वी विल लर्न। ओके, देन व्हाट इज मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो एवरी चैप्टर में हम लोग वी विल डिटेल रिगार्डिंग दिस क्या बोलते हैं फंक्शंस। ओके, सो नाउ डोंट वरी, अभी आपको ये जो टर्म्स है दैट शुड बी रिमेंबर, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, आईओ सिस्टम मैनेजमेंट, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, command interpretation, and networking। okay, so these are the functions of operating system। clear? okay, now the second is computer hardware। okay, computer hardware, what is computer hardware? Now you know। okay, computer hardware is a collective terms used to describe any of the physical components of an analog or digital computer। जो भी हमारे computers है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स है, ओके, दैट इज कॉल्ड द कंप्यूटर हार्डवेयर। The computer hardware can be categorized as having either internal or external components। okay, computer hardware can be categorized as having either internal or external components। okay, which are the internal components? तो internal components मतलब क्या, motherboard। ठीक है, when we open the CPU so you will find the motherboard on the CPU। okay, processors। okay, so all are the internals। ये सारे क्या है, internals है। जब हमारा कॉलेज स्टार्ट होगा तो देखते हैं, आई विल शो यू द सीपीयू। ठीक है, इनसाइड द सीपीयू कैसे रहता है। ठीक है, हम लोग सीपीयू ओपन करके हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या होता है। ठीक है, तो सीपीयू के अंदर जो पार्ट्स है, इंटरनल कंपोनेंट्स, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल कंपोनेंट्स। ओके, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रैम हम लोग बोलते हैं कि मेमोरी। ठीक है, तो रैम कहाँ पे है रैम, वो हार्ड डिस्क में स्लॉट्स दिया हुआ था रैम का। ठीक है, तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी उसमें फिट किया हुआ रहता है, हार्ड ड्राइव हार्ड डिस्क फिट किया हुआ रहता है हमारे सीपीयू में। ठीक है, पावर सप्लाई, ट्रांजिस्टर, चिप्स, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी पोर्ट्स। ओके, ये सारे क्या है, इंटरनल कंपोनेंट्स है। ऑल दिस कंपोनेंट्स वी विल फाइंड इनसाइड द सीपीयू। जब आपके वो सीपीयू केस रहता है ना, यू विल फाइंड। ठीक है, सी दिस इज ये आपका मदरबोर्ड है। ठीक, तो दिस आर द मेमोरी स्लॉट्स। ठीक है, ये मेमोरी स्लॉट्स है। ठीक है, जिसमें आप लोग रैम, यू कैन फिट दी रैम्स। ओके, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जितना आपको साइज का रैम चाहिए, ओके, उतना साइज का रैम आप उसमें स्लॉट्स में फिट कर सकते हो। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स वहां पे दिया हुआ है। ठीक है,
ये जो है सेल है, ठीक है। तो व्हेन कॉलेज विल ओपन ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी, ये पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि मदरबोर्ड में कौन से पार्ट। दिस इज योर मदरबोर्ड, ये जो है दैट इज क्या है, मदरबोर्ड है, ठीक है। ये क्या है, मदरबोर्ड। व्हेन यू विल ओपन दिस सिस्टम है सीपीयू, सॉरी सीपीयू ओपन करोगे तो यू विल फाइंड दिस मदरबोर्ड। तो यहाँ पे सब चिप्स सर्किट्स वगैरह जो भी है यहाँ पे फिट किया हुआ रहता है। कौन करता है, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर जो सिस्टम बनाता है वो, ठीक है। तो हाँ, जो ये मदरबोर्ड्स में जो भी पार्ट्स है, ओके, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, तो ये हार्डवेयर हो गया। बट कौन से टाइप के हार्डवेयर हो गया, इंटरनल हार्डवेयर, इंटरनल कंपोनेंट्स हार्डवेयर। बाय बिकॉज ये हमको दिखता नहीं है, कहाँ पे रहता है, फिट क्या रहता है, इनसाइड दी सीपीयू, ओके। जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, दिस इज हार्डवेयर, ये हार्डवेयर है, बट कहाँ पे, इनसाइड दी सीपीयू, सो इट इज कॉल्ड इंटरनल कंपोनेंट्स, okay. These components collectively process or store the instructions delivered by the program or operating system, okay. ये सारे components जो है, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, all these components, ठीक है, all these components collectively process, okay, all these components process or store the instructions delivered by the program or operating system. operating system जो भी instruction देता है उसके हिसाब से वो सब क्या होता है, वर्क करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल, इंटरनल तो मैंने आपको दिखाया, इंटरनल्स, ओके। इनसाइड द सीपीयू में मदरबोर्ड फिट होता है, मदरबोर्ड हो गया, ठीक है। मदरबोर्ड्स में जो भी कंपोनेंट्स है, ऑल आर द इंटरनल कंपोनेंट्स, ओके। द सेकंड टाइप ऑफ हार्डवेयर इज एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। एक्सटर्नल कंपोनेंट्स ऑल आल्सो कॉल्ड पेरिफेरल्स, ओके। एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, पेरिफेरल्स कंपोनेंट्स भी हम लोग बोलते हैं, ओके। मींस जो सिस्टम्स के आजू बाजू जो है पेरिफेरल्स, ठीक है, कंपोनेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल्स और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स are those items that often connected to the computer in order to control either its input or output, okay. Common input components include a mouse, keyboard, microphone, camera, touchpad, okay, stylus, joystick, scanner, USB flash drive और memory card, all are the input devices. Mouse आपको पता है, कीबोर्ड यू नो, माइक्रोफोन यू नो, ओके, कैमरा भी आप यूज करते हो, टच पैड, ठीक है, एटीएम्स में जो रहता है, टैब्स में जो रहता है दैट इज टच पैड, ओके। स्टाइलस एंड जॉयस्टिक्स, ठीक है, जॉयस्टिक्स गेम के लिए होता है, ठीक है। व्हेन यू आर प्लेइंग दी गेम्स या गेम स्टेशंस आप कोई लेते हो, तो उसमें जॉयस्टिक थ्रू यू कैन हैंडल द सिस्टम, ओके। स्टाइलस, ओके, जो आप उसको पेन वगैरह जो रहता है जो आप स्क्रीन पे यूज कर सकते हो। देन स्कैनर, ओके, जो आप डॉक्यूमेंट स्कैन करते हो, ओके। स्कैनर आपके मोबाइल का स्कैनर नहीं, इट इज अ सॉफ्टवेयर। आप मोबाइल में जो यूज करते हो दैट इज अ सॉफ्टवेयर स्कैनर है, बट हार्डवेयर स्कैनर है जो प्रिंटर जैसे ही दिखता है। प्रिंट, अभी स्कैनर एंड प्रिंटर दोनों साथ में आते हैं, ठीक है। तो व्हेन वी विल पुट द पेपर्स इन दिस स्कैनर तो वी विल गेट द सॉफ्ट कॉपी। हमको क्या मिलता है, सॉफ्ट कॉपी मिलता है। बट उस पहले हम क्या करते हैं, स्कैनर में वी हैव टू एंटर पेपर, उसको स्कैन करवाने के लिए वी हैव टू एंटर पुट द पेपर इन द स्कैनर, ओके। तो स्कैनर इज इनपुट डिवाइस। कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। स्कैनर इज द इनपुट डिवाइस, यस। माइक्रोफोन्स, okay, loudspeakers, cameras, all are the input devices. हार्डवेयर डिवाइसेस तो है, उसमें भी टू पार्ट्स किया हुआ है, इंटरनल कंपोनेंट्स, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। इंटरनल कंपोनेंट्स मतलब जो सीपीयूज में है, ओके, इनसाइड द सीपीयू फिट किया हुआ है, ऑल आर दी इंटरनल कंपोनेंट्स। जो सिस्टम्स के आजू बाजू है, पेरिफेरल्स कंपोनेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। एक्सटर्नल कंपोनेंट्स आर टू टाइप्स, input devices and output devices. Input device मतलब क्या, devices through which we can enter the data into the system, that called the input components. कीबोर्ड से, तो आप कीबोर्ड से क्या करते हो, आप डेटा एंटर करते हो, तो आपका जो इनपुट है वो कहाँ पे जा रहा है, सिस्टम में जा रहा है। माउस, माउस से आप क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो, इनपुट दे रहे हो ना आप कुछ, तो उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, यू आर गिविंग सम इंस्ट्रक्शंस, दैट इज कॉल्ड द इनपुट, ओके। माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन, आप आवाज, आपका आवाज जा रहा है उसमें, ठीक है। कैमरा, कैमरा कैप्चर योर फेस, आप इनपुट दे रहे हो। तो जो डिवाइसेस से यू आर एंटरिंग योर, यू आर गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू द सिस्टम, that is called the input devices. So all are the input devices. Scanner is also input device, okay. Scanner is also input devices. Scanner is input devices, okay, yes.
And which are the output devices, students? Who will tell me? Who will tell me output devices कौन से हैं? Which are the output devices? Which are the output devices? Ma'am, monitor, printer, headphones, computer, speakers, projector, etc. Yes, very good. Okay, all are the output devices. Why output devices? Why output devices? उसको हम लोग output device क्यों बोलते हैं? Because through monitor, through the screen we can see the information. Yes. Yes, Through Rita. printer, get the printed objects information we needed, and through speaker we can hear the information or whatever thing we want. Through headphones also we can hear the Yes. whatever thing we want, and we can hear music. Yes. So in short, through the output devices, Ma'am, we in can. simple words, an output is data computer center. Yes. Through the output devices, we can get something. Okay, हमको कुछ तो मिल रहा है as an output. Okay, so that is called the output devices. The monitor, printer, speakers, headphones, earphones are the example of output devices. Printer से हमको पेपर बाहर आ रहा है, so we are getting something. ठीक है, हम उसको इंस्ट्रक्ट एंड स्कैनर से हम लोग दे रहे पेपर दे रहे स्कैनर से. ठीक है, तो स्कैनर इज इनपुट डिवाइस, प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस. Okay. Scanner is input device, printer is output devices. So these are the input and output devices. Okay. Yes, all these hardware devices are designed to either